Question number 7, moving charges and magnetic field. It says an electron has an initial velocity of 12J plus 15K kilometer per second. Okay, so of course you can understand this is 12J plus 15K into 10 to the power 3 meter per second. This is the initial velocity vector, and a constant acceleration. Acceleration is equal to 2 into 10 to the power 12 I cap meter per second square. In a region in which uniform electric and magnetic fields are present, if B is equal to 400 I cap micro Tesla. Micro means into 10 to the power minus 6 Tesla. Find the electric field. So you know that the net force acting on any charged particle is given by QV cross V plus QE. So F, you know, force can be written as mass into acceleration. हाँ या ना? So हम लोगों को अगर चाहिए क्या? E चाहिए. So हम लोग एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं. So QE is equal to MA minus QV cross V. So मुझे E चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. So इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to MA by Q minus V cross V. You can understand Q cancels when you divide with the Q on both sides. ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? M मास है, मास कितना दिया हुआ है? इसका इलेक्ट्रॉन का ना 9.1 into 10 to the power minus 31. 10 to the power minus 31. Acceleration दिया हुआ है 2 into 10 to the power 12. By Q है 1.6 into 10 to the power minus 19. This much I minus V cross V. So V cross V, you can do it separately and put the value over here. Or you can write it down first. V cross V is 12 J plus 15K whole to the power 10 to the power 3 cross 400 I cap into 10 to the power minus 6. So if you simplify this, remember J cross I, this cross product of IJK. If you do J cross I, you're going clockwise, so this will be minus K, and K cross I, that will be anti-clockwise, and that will be minus J. Right, plus J, sorry, plus J, right, plus J. Yes. So, क्या स्टेट वाला है? Right? So you can put back the values down. Values put back करना, values put back करके solve करके देखना क्या आंसर आ रहा है. ठीक है? हाँ या ना? I'll put up the answer shortly. हो गया है? Shall I have this? सर B cross V है तो मेरा प्लस नहीं, B cross V लेने से Q V cross V है. You know cross product? उसमें B cross V और V cross V सेम नहीं तो आता. माइनस आ जाएगा तो Right. प्लस हो जाएगा. ना इस वक्त गलत उल्टा हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा फिर. सब उल्टा हो जाएगा. B cross B नहीं ले सकते हैं. Q V cross B है. Orientation does matter in cross product. हाँ? हाँ ठीक है, तब चलेगा. सामने प्लस साइन कर दो तब चलेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 डन एवरीवन. लिखा है कैसे? क्वेश्चन नंबर 7 का मैं ज्वाइन कर. So for the next question, question number 8. Question number 8 क्या बता रहा है? Where is it? Done? लिखा है कैसे? Next, question number 8 बोले से an electric field 1.5 kilovolt per meter and a perpendicular magnetic field are act at a moving electron to produce no net force.
what situation is this? To produce no net force. To produce no net force means V equals to F is equal to QV cross V plus QE gives you zero no net force. So this is, remember what effect? Hall effect. This is a Hall effect, okay? So in Hall effect, we know that magnitude wise QVB becomes equal to QE. So V becomes E by V. So E and V both are given up to you. See E equal to 1.5 kilovolt means 10 to the power 3 volt per meter, and V is equal to 0.4 Tesla. So you have to put back the values and get your answer. तो यहाँ पे खाता कौन सा है? तो हम क्या करें? 8, question number 9. An electron is accelerated from rest with a potential difference this much. It enters a uniform magnetic field of magnitude 200 millitesla. What width is velocity perpendicular to field? Calculate the speed of the electron. So you know, whenever an electron is accelerated across a potential difference, we can write the equation half mv square equal to q into v. Over here, this q is what? Charge on one electron. Is that clear? So अगर half mv square e into v है, then यहाँ पर हम लोग को क्या निकालने बोले हैं? v, right? So ये क्या हो जाएगा? 2ev by m the whole. Okay? So you can put back the value 1.6 into 10 to the power minus 19 into v कितना दिया हुआ है? 350 volt. 350 volt दिया हुआ है और मास कितना है? 9.1 into 10 to the power minus 31. ठीक है? और यहाँ से b मिल जाएगा. फिर बोले हैं कि find out the radius of the path. So r is equal to क्या होता है? mv by qv. So now you know all the values. b यहाँ से मिल जाएगा. मास मालूम है. Charge on the electron is e और b का वैल्यू भी मालूम है. तो ये पुट बैक करेंगे, पुट बैक करके सॉल्व करेंगे. समझ में आया? 9.1 into 10 to the power minus 31. Beta, I remember calculating it. 1.11 into 10 to the power 7 meter per second. So this will be 3 into 10 to the power 7 by 1.6 into 10 to the power minus 19 into दिया हुआ है 200 मिलीटेस्ला. मिलीमीटर 10 to the power minus 6. बस वैल्यूज पुट करेंगे और रेडियस जो आएगा वो मीटर्स में आएगा. 0.3 मिलीमीटर चाहिए. 3.16 10 4. Right, that is 0.3, 3.16, 0.1316. Is that clear? हो गया है? Next question. Question number 10. ये कैसे किए? ये वाला Question number 10 कैसे किया आपने? एक्सेलरेशन निकाले. यहाँ पर बोला हुआ 10 gram bullet having a charge of 4 microcoulomb is fired at a speed of 270 meter per second in a horizontal direction. A vertical magnetic field of 500 microtesla exists in the space. Find the deflection of bullet into the magnetic field as it travels through 100 meter. Make appropriate approximations. So see, in these type of sums, whenever they say that this much distance it goes, how much deflection will it be? So it is a motion in 2-dimension sum. Means the bullet is being thrown at a certain velocity, and due to the magnetic field present, it gets deflected upwards or downwards by a certain value. So if I just think of that is getting deflected downwards because of the magnetic forces, then in the horizontal direction it travels 100 meters. All I need to find out कि vertical direction में वो कितना deflect किया, and that will be due to the force, magnetic force. समझ में आया? So अब मुझे बताओ पहले magnetic force on a moving charge particle कैसे निकाला जाता है? F equal to sin थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 180 डिग्री है. So force निकल जाएगा वहाँ से. तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? Acceleration निकालेंगे. Acceleration क्या होता है? So that is qvb by m. यहाँ से acceleration निकल जाएगा हम लोगों का, और वो acceleration कौन सा direction में act कर रहा है? Vertical direction में, इस direction में act कर रहा है, ठीक है? और इसीलिए वो bullet जो है वो drop कर रहा है, alright? So now what you do is यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 में mass है 10 ग्राम
चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, 4 into 10 to the power minus 6, राइट? वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 270 दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड है 500 माइक्रो टेस्ला, 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय मास दिया हुआ है 10 ग्राम। 10 ग्राम मींस 0.01 kg, right? Did I write it correctly? 10 gram मतलब 0.01 kg. So this is what? This is this much meter per second square. You got the acceleration? Now what you do is use the equations of motion for the x-axis and y-axis. Along x-axis, it will be a uniform motion, straight line. So you first figure out how much is the time taken. Time taken is for uniform motion. How do you find out time taken? Distance by by speed. velocity. So distance है 100 और इसका velocity कितना दिया हुआ है? 270. So time कितना हो जाएगा? 100 by 270 seconds. 0.37. हाँ, whatever comes out. And along y-axis में क्या हो जाएगा? Displacement निकालेंगे तो क्या होगा? S equal to ut plus half at square. तो u तो 0 है along y-axis. तो just half at square कर देंगे. कहाँ से मिलेगा? a यहाँ से मिलेगा, कैलकुलेट करके जो आएगा आंसर यहाँ लिखना पड़ेगा, और t जो यहाँ से मिला है वो यहाँ पर डालेंगे, ठीक है? कौन तो ऐसे तो बोल रहे a acceleration -6 I didn't make the calculation this time. Acha, whatever comes out, you make the calculation over here. Whatever comes out, you put it over here, and the time from here over here. So you get the s. S is what? S is this distance. ये distance s है, ठीक है? अगर ये distance s है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? डिफ्लेक्शन बोला है ना, क्या बोला है यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन? मेक डिफ्लेक्शन ऑफ द बुलेट। डिफ्लेक्शन ऑफ द बुलेट मतलब you need to figure out how much angle did it deflect. ये angle. So if I take this angle as theta, this as s, and this 100 meter as r, then deflection theta is equal to s by r. ठीक है? r 100 है और s यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा, वो वाला वैल्यू यहाँ पर लेके डालना पड़ेगा। And obviously theta will come in radians. किस चार्ज पे? Radians. ठीक है? Done? हाँ या ना? अब एक क्वेश्चन है, ठीक है? कौन आंसर देगा? क्वेश्चन नंबर 11 ही है, लेकिन 11 को हम लोग थोड़ा विजुअलाइज करेंगे, ठीक है? बिकॉज दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन. Remember I told you that the Earth's magnetic field saves us from the harmful particles ejected by the sun, right? So ये sun भी कुछ इसी तरीके का है. ये बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास एक चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल is being thrown around this direction, and there is a magnetic field over this region. ठीक है? And at the end of the magnetic field there is a wall. एक wall है. ठीक है? So ये जो चार्ज पार्टिकल जा रहा है, ये डिस्टेंस कितना होना पड़ेगा कि चार्ज पार्टिकल इसको हिट ना करे, वॉल को हिट ना करे. कैसे नहीं करेगा चार्ज पार्टिकल वॉल को हिट? कैसे नहीं करेगा? क्यों डिकेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड के कारण. वो क्या होगा? अगर मान लो यहाँ पर हम लोग एक डायरेक्शन यहाँ पर नहीं बोला हुआ है, कुछ भी डायरेक्शन है, सोचो कि ये ऐसे सीधा जाके जैसे यहाँ पर घुसेगा, घुसने के बाद क्या होगा? ये सीधा जाएगा क्या? ऐसे क्या होगा? बेंड हो जाएगा. सो क्या होगा? इट विल ट्राई टू मूव, गो फॉर अ सर्कुलर पाथ, राइट? सो हम लोगों को पूछा है कि ये वॉल को हिट नहीं करेगा, उसके लिए ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए ताकि वो वॉल को हिट ना करे? इसका ये लाइन क्या है? पेशेंट क्या इसको नाम है कि really sorry. क्या?
जल्दी। हाँ, ये यहाँ पर हम लोग ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हाउ डू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस? यहाँ पर सारा डेटा दिया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, मैग्नेटिक फील्ड b है। सो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे ताकि वो मिस हो जाए? सो सी इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। यहाँ से जब चार्ज पार्टिकल अंदर घुसेगा, ये जो शेप ये बनाएगा, ये शेप क्या है? This is a perfect semicircle because it will move in a circular path ना। আমরা কি পড়েছিলাম? यहाँ कंसंट्रेट नहीं कर रही हो, फोकस नहीं कर रही हो। चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे मूव करता है? क्या पढ़ा है हम लोगों ने? जब हम लोग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करते हैं, it moves in a circular path. So if it moves in a circular path and it goes intersect and comes back along the same direction, of course it has to form a half of a circle, perfectly a semicircle. Is that clear? Now if this is a perfect semicircle, then the center should lie on this. This should be the diameter and this should be nothing but the yes. समझा? So ये जो distance है, ये distance ये रेडियस से या तो बड़ा होना पड़ेगा या तो इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये बॉल को हिट नहीं करेगा, उससे पहले ही घूम जाए। ठीक है? That means question number 11 for the charged particles to miss the wall, R should be greater than equal to D. Sorry, उल्टा लिखा मैंने। D should be greater than equal to R. मतलब उसका रेडियस से वो डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल ज्यादा होना चाहिए। Is that clear? तो अगर D जो greater than equal to R होना चाहिए, अब ये R कैसे मिलता है हम लोगों को? How do we find out this radius? R is equal to mv by q. K raised to b by mv बोल दो। लेकिन देखो यहाँ पर mv नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है इसका चार्ज पार्टिकल। अरे हाँ फिर किस पर मान, लेकिन यहाँ पर क्या डालेंगे? twice mk। जब भी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ होता है तो हम लोग mv की जगह में twice m into k यूज करते हैं। कितना बार बोले हैं ये हम? ये सब ऐसे सम हम लोग नहीं किए इससे पहले। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है तो इसलिए EB लिख रहे हैं। Is that clear? तो ये R का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ डाल रहे हैं, so it will be power of twice mk by EB. Now they don't want us to find out the distance, they want us to find out the magnetic field, माने BA वैल्यू बात करते हैं। So if we square it up, ठीक है, इसको B को सही साइड चेंज कर देते हैं। B को यहाँ पर लिखते हैं power of twice mk by E into D लिख देते हैं। एंड देखो वही एक्सप्रेशन, हाँ सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर डालना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ twice mk by d square। ठीक है? सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इससे ज्यादा होना पड़ेगा, तभी वो क्या करेगा? कोलाइड नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घुस के यहाँ से निकल जाएगा। अब बोला है ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या चार्ज होता है? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये तो मैग्नीट्यूड मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या निकालेंगे जल्दी से बताओ? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए? कैसे निकालते हैं हम लोग? यूजिंग फ्लेम, हाँ राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये चार्ज पार्टिकल फोर्स किधर एक्सपीरियंस कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जा किधर रहा है? इधर जा रहा है, तो करंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो फर्स्ट फिंगर किधर नोट कर रहा है? इनसाइड द बोर्ड, लेकिन वो होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। कौन से चार्ज के लिए? राइट। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज है ना, सो नेगेटिव चार्ज के लिए एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, मींस दे इट विल बी कमिंग आउट। सो क्या बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनो। जब भी तुम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लगाओ यूज करोगे ना, जस्ट थिंक ऑफ इट फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जैसे बिहेव करना चाहिए उसके हिसाब से पहले निकाल लेना, डायरेक्शन निकाल लेना,
फिर चार्ज अगर नेगेटिव कर देते हैं ना, सो डायरेक्शन जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा और कुछ नहीं करना। नेगेटिव चार्ज के लिए अलग से कुछ याद रखने का, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन पहले निकाल लो, निकाल के नेगेटिव चार्ज के लिए जस्ट इसका उल्टा कर दो। सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द फर्स्ट वेक्टर मूव्स इनवर्ड्स, लेकिन नेगेटिव चार्ज है इसलिए द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। सो द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर दिस रीजन शुड बी डायरेक्टेड इन द, इसके अंदर ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड शुड बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स फ्रॉम द out of the plane। जल्दी से बना लो। Well, the next question, it says, question number 12 says, a particle of mass m and positive charge q moving in a uniform velocity u enters a magnetic field B at an angle theta shown in the figure. Find the radius of the circular arc it describes in the magnetic field. तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हम लोग थ्रो करते हैं तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू जल्दी mv/q। हां तो यहां पर v जो है वो u बोला हुआ है, सो इट विल बी mv/q इनटू v, दैट बी द रेडियस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये बोला गया है कि ये रीजन में एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिनोट कर रहा है और बोल रहे हैं कि यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग ऐसे थ्रो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, व्हिच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल डायरेक्शन। सो मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये चार्ज पार्टिकल ये रीजन में घुसेगा वो कौन सा डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, व्हिच डायरेक्शन विल इट एक्सपीरियंस द फोर्स? Which direction will it experience the force? कौन सा direction में force experience होगा? तानिया बताएगी और कोई नहीं बताएगी, बोलो। हाँ, एक एक एप्लीकेशन नहीं तो समझ में आएगा ना कौन सा direction में force experience करेगा। कौन सा बाहर? मतलब ऐसे यहाँ उसके से पहले ही बाहर निकल के चला जाएगा, लपक के घूम के जाएगा, क्यों? इधर घूमेगा, इधर घूमेगा या इधर घूमेगा, कौन सा डायरेक्शन में घूमेगा? कैसे समझ में आएगा कि ये इधर घूमेगा या इधर, इस तरफ घूमेगा, क्यों? बता, सही बोल रही है, क्यों? राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड तो यूज ही नहीं किया। पीयूष इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज पार्टिकल, इस साइड में घूमेगा या इस साइड में घूमेगा? क्यों इस साइड क्यों घूमेगा? हाँ तो ऐसे तो कभी नहीं बताया हम ऐसे घूम जाएगा, वो तो यहाँ पर ड्रॉ किए थे कि ऐसे ड्रॉ करना एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है, क्या बताओ कौन सा डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? आज बाकी लोगों का क्या हुआ इससे? कल क्या टेस्ट है? सुनो ध्यान से सुनो, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ऑब्वियसली हम लोग फेविस लेफ्ट हैंड रूल ही लगाएंगे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन इन व्हिच द फोर्स एक्ट्स एट द इंस्टेंट इट इज एंटरिंग दिस पॉइंट। मतलब जो पॉइंट में, जो इंस्टेंट में, जो टाइम इंस्टेंट में जो टाइम इंस्टेंट में यहाँ पर घुसेगा अंदर, वो टाइम इंस्टेंट में वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन लेफ्ट हैंड रूल बताता है F, B एंड I, B किधर है? इनटू द प्लेन, और I है जो जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल घुस रहा है, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, देखो along this direction। so इस ये क्या होगा, at this point it will experience the force along this direction। obviously इससे परपेंडिकुलर होगा ना, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन,
और उसके कारण क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल यहां से घूम के ऐसे यहां से निकल जाएंगे, ठीक है, समझ में आया बोला मुझे ऐसे। सो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स अराउंड दिस डायरेक्शन, उसके लिए ऐसे रोटेट करके निकलेगा। अब देखो ये जो पॉइंट यहां पर हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, हाँ या ना। तो यहां से एक नॉर्मल लेंगे और यहां से एक नॉर्मल लेंगे, सो ये जहां पर मीट करेगा दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर आर्क। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि टेंजेंट से नॉर्मल क्या होता है, रेडियस ही होता है ना, टेंजेंट के रिस्पेक्ट में नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस ही होगा। तो ये दो पॉइंट से हम लोग रेडियस लेंगे तो कहां पर मीट करेगा, ये वाला पॉइंट में। अब देखो ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा ये पूरा 90 डिग्री है ना, तो π/2 माइनस थीटा आया ना। और यहां से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, तो देखो ये और ये पैरेलल हुआ तो ये π/2 माइनस थीटा हुआ है, मतलब ये भी π/2 माइनस थीटा। और सिमेट्रिसिटी के हिसाब से अगर ये थीटा एंगल में अंदर घुसा है तो जब निकलेगा तब भी नॉर्मल के साथ ये थीटा एंगल बनाएगा। सो सिमिलरली ये भी π/2 माइनस थीटा होगा और ये एंगल भी π/2 माइनस थीटा होगा। तो द होल एंगल सबटेंडेड बाय दिस रोटेटिंग पार्ट विल बी हाउ मच, 2 into π/2 minus theta। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड। सो देयरफॉर द एंगल सबटेंडेड is equal to 2 into π/2 minus theta, that is pi minus 2 theta। Is that clear? हाँ या ना? So the angle subtended is pi minus 2 theta। Now ये A B हो गया, C के लिए क्या होगा, part C। part C में पूछा है how long does the particle stay inside the magnetic field। देख एक पूरा सर्कल घूमने के लिए कितना टाइम लगाता है चार्ज पार्टिकल, T is equal to 2 pi m by you know this time period of a circle पर, लेकिन ये कितना एंगल घूमने के लिए लगाता है, that means 2 pi। तो 2 pi एंगल के लिए अगर ये पूरा टाइम लगता है तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से इतना एंगल के लिए कितना लगना चाहिए, this into this by 2 pi। for 2 pi time taken is 2 pi m by qb। for unit angle time taken will be 2 pi m by qb into 1 by 2 pi, and for pi minus 2 theta it will take 2 pi m by qb into pi minus 2 theta by 2 pi, right? So 2 pi cancels, it will be m into pi minus 2 theta by qb। ठीक है, समझ आया, हाँ या ना एवरीवन? देखो ये डायरेक्शनल सेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है और किधर घूमेगा वही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये सारा कैलकुलेशंस बच्चों का खेल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट बोला है कि सेम ही चीज हम लोग को रिपीट करना है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होके क्या होता, नेगेटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होकर नेगेटिव चार्ज होता तो सेम चीज रिपीट करना पड़ता। नेगेटिव चार्ज होता तो क्या ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस करता, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है ये ऑपोजिट सेंस में घूमता, मतलब ऐसे यहां पर अगर आ रहा है एट एन एंगल ऑफ कितना डिग्री, थीटा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज -q, तब ये किधर घूमेगा, ये ऐसे घूम के यहां से कम आउट फ्रॉम दिस पार्ट। तो यहां पर जो फोर्स है वो किधर एक्ट करेगा, यहाँ पर जो फोर्स है इट विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग 90 डिग्री टुवर्ड्स द सेंटर एक रेडियस लिया और यहाँ पर भी 90 डिग्री टुवर्ड्स द सेंटर रेडियस लिया, तो ये सेंटर बन जाएगा हम लोग का। व्हाट्स रॉन्ग, तीन जन निकल जा क्लास से, चलो जल्दी से।
So now look at this very carefully. If this angle is theta, how do we make out the angles formed over here? If we just produce this a little, if this angle is theta, then vertically opposite angle this is also theta. Can you understand? ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर क्रॉस कर रहा है ना, तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सिमेट्रिसिटी के हिसाब से ये एंगल भी π/2 माइनस थीटा होगा। तो ये पूरा बाहर वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? ये पूरा बाहर वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? बताओ। 2π, the whole angle is 2π, তাহলে 2π minus π minus 2 theta. This is π minus 2 theta. তাহলে the first part of the question will remain the same. The radius will be mv by qb. There will be no change. Second part of the question जो है angle subtended वो कितना होगा? It will be 2π minus ये पूरा एंगल, that is 2 into π/2 minus theta. So this will be 2π minus pi plus, so it will be pi plus 2 theta. Okay, so pi plus 2 theta is the total angle subtended at the वहाँ पर center by this arc. Clear? और उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है? The same thing, time taken for this charged particle to rotate in this path and come out. तो वो क्या हो जाएगा? Same method से निकालेंगे। तो time taken will be m by qb into pi plus, देखो यहाँ पर pi minus 2 थीटा था, उसके लिए ये आया था, और pi plus 2 थीटा होगा, तो उसके लिए सेमी एक्सप्रेशन आएगा, सिर्फ pi plus 2 थीटा होगा। Is that clear? Not difficult, just conceptual. Question number 13, it says that a particle of mass m and charge q is projected into a region having perpendicular magnetic field B. Find the angle of deviation of the particle as it comes out of the magnetic field with width D is very slightly smaller than a given value. ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायग्राम के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है एक रीजन में, ठीक है, इट कैन एक्सटेंड अप टू एनी पर्टिकुलर लेंथ वी फील लाइक, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो दिया हुआ है कि स्ट्रेट ऐसे सीधा इसके अंदर थ्रो किया जाएगा। सो ऑफ कोर्स यू हैव लर्नड दैट जैसे सीधा थ्रो किया जाएगा, if it is a positively charged particle, it experiences a force in the vertically upward direction at the point of entry. तो वो क्या करेगा? वो ऐसे कर्व पाथ में, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, राइट? अब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि find the angle of deviation of the particle as it comes out of the magnetic field in the width D. D कौन सा width है? ये वाला width, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में है, ये रीजन का width है D. इधर भी एम्प्टी है और इधर भी एम्प्टी है, सिर्फ ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट है, ठीक है? हाँ यार, अब क्या हो रहा है कि जब बोला है कि हाउ मच एंगल विल इट डिविएट, फर्स्ट ऑप्शन मैंने फर्स्ट पार्ट, व्हेन द डिस्टेंस d is slightly smaller than mv by qb। अब मुझे बताओ, जब एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग थ्रो करते हैं तो उसका रेडियस कितना होता है? mv by q। रेडियस r is equal to mv by, that means over here they are saying b is a little less than the radius। मतलब इसको एक्चुअली अगर ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता तो ये चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता? यहाँ से किधर जाता है? मान लो यहाँ पूरा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टेंट है, तब क्या करता? क्या पढ़े हम लोग? राइट, घूम के वो बाहर निकल जाता है यहाँ से, एग्जैक्टली 180 डिग्री डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना चाहिए था। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हम लोग कहाँ पर खत्म कर दे रहे हैं? ये रीजन में खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये अगर 180 डिग्री घूमता है तो ऑब्वियसली ये एक डायमीटर होना चाहिए ना, हाँ या ना? और ये जो है ये रेडियस होना चाहिए उसका, राइट? तो वो
बोल रहे हैं कि रेडियस जो है a little greater than d है, little greater than d है मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सिट करके बाहर निकलेगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा will it experience any more force? No. So वो tangentially ऐसे यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा, tangentially निकल के बाहर चला जाएगा. Do you understand me? Since it's given that this range of magnetic field is a little less than this distance d, sorry, radius of rotation is little greater than the distance d, तो मतलब क्या, थोड़ा सा यहाँ पर बाहर में वो रोटेट कर जाएगा. जैसे बाहर जाएगा it will not experience any more force, and if it does not experience any more force, then you know any circular motion, body performing circular motion, if the centripetal force ceases to act, what happens? वो tangentially निकल जाता है, ceases मतलब बंद हो जाता है, then it goes tangentially, तो tangentially ये बन गया वेलोसिटी. Is that clear? So the velocity it will move in a tangential direction. अब देखो initial direction of entry क्या था, इस direction में, और फाइनल कहां से निकला, तो ये एंगल कितना डिग्री में रोटेट किया, 90 डिग्री. राइट. सो इट डिफ्लेक्ट्स बाय पाई बाय 2 बाय एन एंगल इक्वल टू पाई बाय 2. Now look at the second situation. They're saying d is slightly less than mv by 2 qb, and mv by qb is r. So they're saying d is slightly less than r by 2. Now see, if I take up the same diagram, d is slightly less than r by 2. R by 2 means half of this. This is the radius r. So if I take the half of this, they are saying this distance d is no longer the whole length. It is how much length? This much. Distance d is exactly half of the radius. Okay? That means ये point में क्या होगा, magnetic field cease हो जाएगा. The magnetic field will cease at this point. The magnetic field will cease at this point. मतलब यहाँ तक ही magnetic field है, up to this much. और इसके बियॉन्ड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, यहाँ से टेंजेंशियल निकलेगा, हाँ या ना, यहाँ से ये टेंजेंशियल निकल जाएगा. सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस डायरेक्शन. ये डायरेक्शन क्या होगा निकालना. देखो यहाँ से सेंटर है, सेंटर से अगर हम लोग ये वाला पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल है ना, हाँ या ना, राइट एंगल है. और यहाँ से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, we draw a perpendicular from here, तब ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये राइट एंगल हो जाएगा. और हम लोग को निकालना कौन सा एंगल है, कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल, राइट. मतलब इनिशियली इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था ना, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था, तो यहाँ पर भी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है. सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, ये वाला एंगल निकालना. ठीक है, तो दोनों का साथ हो जाएगा. अब किस के साथ, वो 90 वो वाला और ऊपर वाला, तो पांच बार 90 बनाया, वो एंगल का सम हो गया. ये थीटा एंगल किसका सम होगा, वो दोनों बनाया. ये क्यों, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. अरे वो तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होता है, कहां ट्रायंगल बन रहा है जिसका एक्सटीरियर एंगल ये थीटा है. ये तो सिंपली यहां पर एक एंगल थीटा, देखो ये थीटा है और ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री. तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए ताकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो. पाई बाय 2 माइनस थीटा. Can everyone understand this? About this point, a pointed about it. This whole angle is 90 degree. This is theta. Then obviously this is 90 degree minus theta. Now, if this is 90 degree minus theta and this angle is 90 degree, how much will this angle be? Minus. अरे बाबा theta. Theta angle का सम 180 डिग्री ना? कितना आना चाहिए? Yes or no? Yes. अब यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है? Radius of the circle. R. और यहां से ये डिस्टेंस क्या है,
बोलो d है राइट, और वो d का वैल्यू क्या दिया हुआ है r/2। तो ये थीटा को निकालने के लिए साइन थीटा का हेल्प हम लोग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है d और हाइपोटेन्यूज है r, तो साइन थीटा शुड बी d by r, right? So that sin theta is coming out to be d by r is how much? Say d by r will be less than equal to half। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। So sin theta equal to half अगर होगा तो theta equal to कितना डिग्री? 30 degree. So it will rotate by 30 degree। परपेंडिकुलर है और sin theta डिग्री पे। नहीं, conceptually पूरा गलत हो जाएगा। So theta is equal to 30 degree। Is that clear? The angle by which it deviates will be 30 degree। समझ आया? क्या समझ नहीं आया? Directional senses जल्दी से ड्रॉ कर लो थोड़ा। Now part C, it is saying that this distance d is now extended to double the radius. Means this should have been the circular path. They are saying that we take the magnetic field up to this region. They are taking that magnetic field up to this region. तो बताओ क्या होना चाहिए? एक तो it will go for a semicircular path, क्योंकि पूरा तो magnetic field available है ना। तो पूरा अगर magnetic field available होगा तो ये पूरा ऐसे semicircular path में घूम के कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। So entry point इस direction में था, exit point इस direction में है। कितना एंगल में घुमा? 180 degree। इस direction में था, पूरा ये rotate करके इस direction में। So it rotates by an angle of 180 degree। If d is slightly less than 2r, then the charged particle completes the semicircle. Therefore, deviation will be 180 degree or pi. 180 degree. Deviation will be 180 degree. Clear sir? এখানে it deflects by 90 degree, এটাতে 30 degree আর এটাতে 180 degree। বুঝা আছে? So this was not a solving sum, it was a conceptual sum। हमने अपने प्रॉब्लम पार्टी पे रखा है। প্রবলেম পাঠিয়েছি এখন একটু বাদে দেখি এটা হয়ে গেলে। আচ্ছা নেক্সট কোনটা? 13টা। সো shall I this এটা হয়ে গেছে। Is it done? বুঝবো আমি? It says that Fe plus ions are accelerated through a potential difference of 500 volt and are injected normally into a homogeneous magnetic field B of strength 220 millitesla. Find the radii of the circular paths followed by the isotopes of mass 57 and 58, and the mass number is mass of any ion is A into 1.6 into 10 to the minus 27. So how to solve this? We just need to find out the radii, right? So radius का formula क्या है? R equal to mv by qb। तो यहाँ पर mv by qb हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो accelerated across a potential difference बोला हुआ है। तो जब भी accelerated across a potential difference बोलते हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं? root over of twice m into kinetic energy is given by q into v। V is what? The potential difference, accelerating potential difference by q। Okay, so when we are finding it out the value for 57, isotope 57, it will be root over of
2 into mass will be 57 into 1.6 into 10 to the power minus 27 into charge will be, it is Fe plus iron, not 2 plus iron 9, Fe plus bullets. Plus means only one charge, 1.6 into 10 to the power minus 19 into accelerating potential difference is 500 volt. Divided by charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 into V is 20 millitesla into 10 to the power minus 3. Alright? Okay, this calculation it comes out to be equal to 119 centimeter hopefully, which is 1.19 meter. 1.19 meter, and R58 will be exactly the same. Instead of 57, you'll have a 58. By 1.6 into 10 to the power minus 19, 20 into 10 to the power minus 3. I'm sorry, 1.2 meter here. Yes. So, what you need to understand, you need to remember this formula. A formula na ekটু মনে রাখতে হবে. We know that R is equal to mv by qb जब mass and velocity are known to us. But whenever it is given that it is accelerated across a potential difference v, charge particle is accelerated across a potential difference v, you need to use this formula as the formula. Now you will say, sir, ये कहाँ से आ गया? It's a simple सा thing है. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किया ना कि जब भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है, kinetic energy half mv square is given by q into v, right? So half mv square को हम लोग k लिख सकते हैं, right? और mv क्या है? Is root over of twice m into k. So that is root over of twice m into q into v. समझ आया? mv by qb के जगह में mv के जगह में हम लोग ये डाल. So mark this up so that you can remember कि जब भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेटेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस बोला हुआ रहे या उसका काइनेटिक एनर्जी बोला हुआ रहे, तब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? रेडियस. समझ आया? अगर समझ नहीं आया, R इक्वल टू फॉर्मूला है mv by qb ना. अगर मोमेंटम मतलब वेलोसिटी नहीं देके वो लोग काइनेटिक एनर्जी ले देते हैं, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं रूट ओवर ऑफ ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी बाय qb. और अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं देके वो लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, तब हम लोग ये वाला सब्स्टिट्यूट करते हैं रूट ओवर ऑफ ट्वाइस m qb बाय वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है अगले सेकंड फार्मूला था और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अगले थर्ड फार्मूला. You have to use it to find out the radius. ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है. नहीं हाँ ठीक है. हाँ वही चीज आएगा, एक्सेलरेशन निकाल के वेलोसिटी निकाल के. तो देखो तुमको कितना कुछ करना पड़ा. एक्सेलरेशन निकाले, वेलोसिटी निकाले, फिल्ड्स का वैल्यू निकाले. यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट कर कैलकुलेशन पर्पस. नहीं ये सही है. हाँ क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोल रही हो ना, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा? वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट करेगा ना, तो उसमें क्या एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए तो बार-बार बोल रहे हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब यही से डिराइव करके ये फॉर्मूला निकलता है. तो हम पहले इतना टाइम क्यों वेस्ट करें? हमारा जो फॉर्मूला डायरेक्टली है. इज दैट क्लियर? बोल रहे हैं सेटा? चलो it says that question number 19 says that we have a wire which is bent in the form of PQRS DU. Okay, they are saying that this is the y-axis, this is the z-axis, and this is the x-axis. ঠিক আছে? কি করতে বলেছে আমাদের? বলেছে যে shows the wire PQRSTU each side of length L. Each side of length L means every bending is after a length L.
all the bendings are taking place after a length L. Alright? Now they want you to find out the force acting on the whole wire. The magnetic field is parallel to the positive y-axis, means B exists along this direction. Positive y-axis का direction में है और current is being carried along the marked direction. जो marked direction है सर, जो marked direction है उस direction में current carry होगा. ठीक है? अच्छा पहले साइमन TS का, अच्छा साइमन रुद्र बोल रहा ना, रुद्र TU किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? UT जो स्ट्रेट लाइन पार्ट है ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस में है. ये करंट कैरिंग वायर का पैरेलल है. ये करंट कैरिंग वायर का क्या है? पैरेलल है. नहीं होगा. तब अगर एक करंट कैरिंग वायर का पैरेलल जाता है मैग्नेटिक फील्ड, वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? At a current carrying wire parallel to the magnetic field থাকে তাহলে it will not experience any force. Is that clear? तो ये TU कोई force experience इस तरह समझ में आया? Because magnetic field जिस direction में है वो current carrying wire की उसी direction में है ना, so they are parallel. Parallel current carrying wires, माने if a current carrying wire is running parallel to the magnetic field, it will not experience any force. देखो write this down. TU for PU, B is parallel to L. Therefore, F is equal to IL cross B equal to 0. ठीक है? L और B जो है वो parallel है, so it will be 0. Clear? इसके बाद T से S आता है. Simon, TS will experience the force along which direction? PS part will experience the force along which direction? FBI. So if we go for the FBI directional sense, ताले B क्या बोल दी के B is along which direction? And current is being carried in the upward direction. So it should be experiencing the force into the board. Into the board means along the negative Z, x axis. So this is the positive x axis. Into the board will have negative x axis. Is that clear? Right. Negative x-axis. It will experience the force along the negative x-axis. Okay? And the force will be F equal to ILB sin 90 degree. That is ILB along negative x-axis. So you can just write minus I cap. F is equal to this much minus I cap. You understand why minus I cap? I will solve it. negative x-axis के लिए. Right. Simon बुझा है? अच्छा. ईशा, SR कौन दी को force experience करते हैं? SR part का. SR will experience the force along which direction? Current का AB के हाथ से outwards. FBI current का outwards बाहर दिखे बेलत से. Our magnetic field का y-axis है यहाँ. So it experience the force in the right. So that is the z-axis, positive z-axis. So for SR, F will be equal to I LB sin 90 degree along which direction? Positive z-axis, IJK, right? So it will be ILB K cap. Say this is F1 etc. For RQ will experience the force along which direction? RQ कौन दी force experience कर रहे हैं? बाहर दिखे नहीं वो अंदर दिखा रही उसको ना. So see over here, the current is being carried in the downward direction, and the magnetic field is along this direction. So the thumb is pointing It's pointed in the outward direction.
So outward direction है बोले क्या है? F will be equal to ILB sin 90 degree along the positive x-axis, right? So ILB, I cap, and what? Which how much will be the force on QP? Zero. Again, B is parallel to L. Therefore, F is equal to 0. Okay. Therefore, net force experienced. Net force कितना होगा? इसका और इसका एडिशन. So अगर ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? Right. So ILB minus I cap plus ILB A cap or ILB I cap. This and this will cancel out. It will be ILB A cap. Clear? Okay. Question number 20. It says calculate the force on the current carrying wire in a uniform magnetic field as shown. Oh, अच्छा 20 तो कर लिए थे ना आप लोग क्लास में? 20 हो गया सर. अच्छा 21 का सिर्फ एक ही सम बना कर दिए थे हम लोग. 21 का पार्ट 2 पार्ट 3 कैसे करेंगे? चलो दिस very अच्छा बनेगा. Question number 21, part A. It says that we have a uniform magnetic field 500 gauss established along the z direction. So B is equal to 5000. 5000 का मतलब क्या है? 0.5 टेस्ला. 0.5 टेस्ला हाँ या ना? हाँ. 0.5 टेस्ला along which direction? Along the K cap, मतलब पॉजिटिव z डायरेक्शन. अब बोल रहे हैं कि a rectangular loop of side 20 सेंटीमीटर and 5 सेंटीमीटर. रेक्टेंगुलर लूप का एरिया कैसे निकालेंगे? 20 into 5 into 10 to the power